السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں امینہ زاہد۔ یوم علی علیہ السلام کے موقع پر مجموعی طور پر 9,500 سے زائد پولیس افسران و اہلکار فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈولفن اسکواڈ کی 22 ٹیمیں، پولیس رسپانس یونٹ کی 10 اور ایلیٹ فورس کی 12 ٹیمیں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 800 ٹریفک پولیس اہلکار و افسران بھی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ جلوس کے شرکاء کی مؤثر نگرانی کے لیے سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ ساتھ DIG آپریشن اور SPCT آفس میں کنٹرول روم قائم ہے۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے پرامن انعقاد کے لیے شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ CCPO بلال صدیق بیانہ نے کہا کہ مجالس عزاداری جلوسوں کے شرکاء کی چیکنگ کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹ سمیت جدید آلات سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ عزاداری جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سادہ لباس اہلکار جبکہ روٹس کی عمارتوں پر سنائپرز تعینات ہیں۔ CCPO لاہور بلال صدیق بیانہ کا کہنا ہے کہ قیام امن اور بھائی چارے اور مذہبی رواداری کا فروغ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ نیوز شریف میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کے یوم شہادت کے سلسلے میں ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو کہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا علامہ شہباز قلندر کے مزار پر اختتام پذیر ہوا۔ ماتمی جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور حضرت مولا علی علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ ہسپتال نے عزاداروں کے لیے بہتر طبی سہولیات فراہم کیں۔ ملک بھر کی طرح احمد پور سیال میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کے سلسلے میں شبیہ تابوت شیر خدا برآمد کیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔ احمد پور سیال میں بھی امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کے یوم شہادت کے سلسلہ میں جلوس شبیہ تابوت حضرت علی علیہ السلام مسجد جعفریہ محلہ سادات سے برآمد ہوا، جو حسینی چوک سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ محلہ گھاڑواں والا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداران کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماتمی سنگتوں نے نوحہ خوانی، ماتم داری اور گریہ زاری کر کے حیدر کرار کو پرسا دیا۔ فاتح خیبر کو خراج اشک بھی پیش کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ عزاداروں کو واک تھرو گیٹ میں سے گزار کر جلوس میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ DSP احمد پور سیال ارشد الوی اور SHO تھانہ احمد پور سیال ماہر واصف نول بھی موقع پر موجود رہے۔ دوسری طرف گڑھ مہاراجہ میں بھی شہادت امام علی علیہ السلام کے سلسلہ میں جامع مسجد جعفریہ گڑھ مہاراجہ میں بعد از نماز فجر مجلس عزا کا انعقاد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ادریس رضا نے شہادت امیر المومنین امام علی علیہ السلام بیان کی۔ بعد ازاں مجلس عزا شبیہ تابوت حضرت علی علیہ السلام برآمد کی گئی۔ تمام مقامی ماتمی سنگتوں نے نوحہ خوانی اور ماتم داری کی۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین انعقاد کے لیے ضلعی انتظامیہ نے انتظامات مکمل کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی نگرانی میں 21 رمضان کے مرکزی جلوس کا پرامن آغاز۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس ریسکیو 1122 اور تمام محکمے فیلڈ میں متحرک۔ مرکزی جلوس کا 4.5 کلومیٹر طویل روٹ مبارک حویلی سے برآمد کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مبارک حویلی سے کربلا گام شاہ سمیت ضلع بھر کے دیگر روٹس پر بھی انتظامات مکمل۔ تمام محکمے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تمام جلوسوں کے آغاز اور اختتام پر تمام سہولیات فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ عزاداروں کو بہترین سہولیات اور انتظامی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان میں پنجاب پولیس اور معروف شوگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر خالد حسین مزاری کے درمیان پولیس اہلکاروں اور شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اور اہم مثالی معاہدہ طے پایا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یار خان، عرفان علی اور ڈاکٹر خالد حسین مزاری کے مابین مفاہمتی یادداشت پر باقاعدہ دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت پولیس شہداء کے لواحقین کو اسپیشل شوگر کلینک میں 100% علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں کو OPD کی فیس میں 50% رعایت دی جائے گی۔ اس موقع پر DPO عرفان علی کا کہنا ہے کہ پولیس فورس کے شہداء اور اہلکاروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور ان کے خاندانوں کی دیکھ بھال ریاست اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ 7 شریف وزیر اعلیٰ سندھ میں سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر ڈویژنل کمشنر حیدرآباد فیاض حسین عباسی نے ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ 7 اور بھان سید آباد میں
तरक्याती मंसूबों का दौरा करके तफसीली जायजा लिया। उन्होंने वाज़ा किया कि तरक्याती कामों में किसी किस्म की सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना शामिल है। हासिलपुर में आरपीओ बहावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने अपने दफ्तर में अर्दर रूम का इनेकाद किया, जहां पुलिस अफसरान और अहलकार के शोकाज नोटिस और अपीलों की समाअत की गई। समाअत के दौरान 4 अहलकारों को मुलाजमत पर बहाल करते हुए सजाएं कम करके तनख्वाह में कमी में तब्दील कर दी गई, जबकि 2 अहलकारों की सजा तरक्की रोकने में तब्दील कर दी गई। एक अहलकार की रैंक बहाल करते हुए सजा को 3 माह सर्विस जब्त करने में तब्दील किया गया। इस मौका पर आरपीओ ने वाज़िया किया कि बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी फेल में मुलविस अहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रीजन में एहतसाब का अमल जारी है और शहरियों को इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। जलालपुर पिरवाला में आरपीओ मुल्तान उस्मान अकरम ने थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। आरपीओ ने मौका पर ही मुतलका अफसरान को मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरपीओ मुल्तान उस्मान अकरम का कहना है कि पुलिस अवामी मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अफसरान की कमी को भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आरपीओ मुल्तान ने कहा कि पंजाब पुलिस आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम की खिदमत और अमन अमान के क़याम के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बड़ा अच्छा था, मेरा जो विज़िट था जलालपुर का, बड़ा तारीख़ी शहर है, उस हवाले से भी काफ़ी मालूमात मिली। दूसरा ये है कि खुली कचहरी का एक मकसद ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सिटी सेंटर से दूर हैं एरियाज़, रूरल एरिया, जहाँ से कोई अगर किसी को कोई शिकायत है या किसी का कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो सीनियर अफसर वहाँ पर जाएं, वहाँ जाके उनकी दरख्वास्त सुने और जो काम होने वाले हैं वो उसके मुताबिक अमल दरामद के लिए हुक्म दें। तो इस हवाले से बड़ा अच्छा है। आज जितनी भी हमने एप्लीकेशनें यहाँ देखी हैं, इंशाल्लाह ये ऐसे नहीं है कि ऑर्डर दे के जा रहे हैं, इसका प्रॉपर फॉलोअप होगा। इसमें देखें क्या कार्रवाई हुई है, फर्दर इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि इंसाफ जो है ना इस जो एप्लीकेंट है उसको उसकी दहलीज के ऊपर। साहिवाल ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर, शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया। महंगाई की शरह में इजाफे के बायस खरीदारी के लिए आए मर्दों खवातीन सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार में जो गहमा गहमी है ईद की ख़रीदारी के हवाले से लोग बाज़ारों का रुख कर चुके हैं। आइए बाज़ार में लोगों की गुफ्तगू सुनाते हैं। हुकूमत मैं तो बड़िया जड़ियां ना बादुआ देना, इन्होंने कख नहीं छड्या इस मुल्क दे विच। सारा मुल्क जिहड़ा बर्बाद कर दिता, कारोबार सारे बर्बाद कर दिते। या अल्लाह इन्हां नूं किते जहाज दे विच ही सिट दे, या अल्लाह इन्हां नूं मगरों ला लै। सारा कुछ महंगा, कोई चीज़ नहीं सस्ती हैगी। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 550 600 ਰੁਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 500 450 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਅੱਗੇ 400 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 500 550 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲੇਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਹਿਣ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਰੁਪਏ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200-1300 ਰੇਟ ਕਰੀਦਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਛੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਤੇ 2000 ਦਾ 1800 ਦਾ ਸੂਟ, 3500 ਦਾ ਸੂਟ ਦਾ ਬੰਗਨ ਦੇ ਰੇਟ। ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਗਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਤੇਰੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? 2200 ਦਾ ਜਾਂ 2500 ਦਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ 1800 ਦਾ ਕਹਤਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਏ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਤੋਂ ਈਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। 10 ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ 10 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 13 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਸਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। दिन वगैरह आती हैं, अंदर लोफर लड़के क्यों फिर रहे हैं इसमें? लोफर लोग फिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चोरियां होती हैं, ठीक है, औरतों के पर्स उठाए जाते हैं, मोबाइल छीने जाते हैं इधर से। ऐसे केस है, ये भी कंट्रोल, ये जो इनकी कमेटी है उनको चाहिए ना इस पे कंट्रोल करे। लेकिन फ़ायदा है इसमें,
काफ़ी सस्ती चीज़ें आवाम को मिलती हैं, लेकिन है चीज़ें लोकल ही। ਫਾਇਦਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-250 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। यही चीज़ बाजार जो ये बाजार जाओ थोड़ा महंगा 100 रुपए तक तकरीबन फर्क है। ਇਹ ਅਸਰਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਅਸਰਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ 400-300 की मिलती है और मैं मुनासिब रेट पर दे रहा हूँ। ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖते हुए ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। यहाँ पे हर मंगल वाले दिन जो है ना बाज़ार लगता है और जो रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, वो इस मेन रोड को ना बंद कर देते हैं। एक तो तेल महंगा हो चुका है, एक महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। तो खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, ये आवाम का कहना है कि हमें 10,000 रुपये देकर राज़ी न करें। और जो बुनियादी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें जिन पर हमारा हक है, उन चीज़ों को सस्ता किया जाए और ये जो ऐसे सस्ते बाज़ार हैं ये लगाए जाएँ। ऐसे बाज़ारों का फ़ायदा ज़रूर है, जिस तरह एक माफिया पंजाब में बैठा पंजे गाड़ के, जैसे कोई चीज़ महंगी होती तो फौरी, अब जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा था, कपड़ा जूते वगैरह जो चीज़ें थी, जिन लोगों ने 2-4 महीने पहले खरीद के रखा हुआ था, तो वो अब दुकानदार चमड़ी उतार रहे लोगों की। लाहौर थाना हरबंसपुरा के इलाके में मरकजी कदीमी इमाम बारगाह कसरे अब्बास अलैहिस्सलाम में बसिलसिला शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम सालाना मजलिस एज़ा मुनाक़िद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन व उलमा ने खिताब फरमाया। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, जिसमें कसीर तादाद ज़ायरीन ने शिरकत की और मातमी संगतों ने मातमदारी की। SP कैंट की हिदायत पर SHO हरबंसपुरा ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की, दाखिली और खारजी रास्तों पर जवानों को तैनात किया। शाह बरादरान की जानिब से लंगर का वसी इंतजाम किया गया। आखिर में अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की हमेशा सलामती के लिए दुआ की गई। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। ASP डिफेंस बरेरा की सरबराही में SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। खुफिया इतला के दौरान चेकिंग में 2 मुलजमान असला और मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 150 किलो से ज्यादा चर्स, पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डॉल्फिन स्क्वाड की शहर भर में क्राइम हॉटस्पॉट पर पेट्रोलिंग स्नैप चेकिंग जारी। SP डॉल्फिन का कहना है कि अहम तजारती मराकज़, मार्केटों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स के इर्द गिर्द खुसूसी पेट्रोलिंग जारी रखेंगे। डॉल्फिन स्क्वाड का असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉल्फिन PRU ने असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग करने वाले 12 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से 10 पिस्तौल, 2 राइफलें, दर्जनों गोलियां, मैगजीन बरामद। मुलजमान को स्टॉप एंड सर्च के दौरान हिरासत में लिया गया है। SP डॉल्फिन उसामा बिन चेमा का इस हवाले से कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए सरगर्म अमल है। क्राइम हॉटस्पॉट पर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे से ईद उल फितर तक डॉल्फिन की टीमें मौजूद रहेंगी। दूसरे अशरे के इख्तितामी दिनों में बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए रश बढ़ जाता है। बच्चों के लिए खरीदारी करनी है, मगर महंगाई के सबब खरीदार परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा खत्म हो रहा है। अब बारी आ गई है बच्चों के लिए खरीदारी की। ज्वेलरी, फैंसी शूज और गारमेंट्स की दुकानों पर खवातीन खरीदारों का रश बढ़ चुका है। दुकानों पर दिल फरेब और खूबसूरत बच्चों और बड़ों के कपड़े लटकते हुए देखकर दिल ललचाता है, मगर बढ़ती हुई महंगाई के सबब से कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। जो भी हो जाए बच्चों के लिए खरीदारी तो करना है, क्योंकि छोटी तो बच्चों की होती है ना। इस दफा ईद पे स्पेशली बहुत ज्यादा रेट अप हो चुके हैं, तो जाहिर है बच्चों के लिए हमने शॉपिंग करनी है और बच्चों की तो ईद होती है। बस हम ये कहना चाहेंगे कि एक नॉर्मल इंसान कुछ भी परचेज करने के लिए 10 बार सोचेगा। जाहिर है एक नॉर्मल इंसान की रेंज इतनी नहीं होती जितनी प्राइसेस अब हो चुकी हैं। दुकानदार भी महंगाई को देखते हुए अपने मुनाफों में इंतहाई कमी करके खरीदारों की परेशानी को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि बच्चों के लिए खरीदारी में आसानी रहे। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि बहुत महंगाई हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है।
तो लोगों को उनकी ये सूरत हाल देखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम चीज़ों की कीमतों में इंतहाई कमी कर देंगे। जैसे ये सूट एक वेस्ट कोट वाला सूट है और हमने इसका रेट सिर्फ 1600 रुपये कर दिया, जबकि आप कहीं कपड़ा लेने जाएंगे या कुछ कढ़ाई या सिलाई करवाएंगे तो आपको 1000-1500 रुपये तो वहीं पे लग जाएगा। तो हमने ये सूट 2 से 6-8 साल के बच्चे का सिर्फ 1600 रुपये में कर दिया। इसी तरह से इसमें काफ़ी वैरायटी है, कलर है। तो ये हमारी तरफ से सब लोगों के लिए ऑफ़र है। जो लोग महंगाई ज़्यादा है, जिनको महंगाई ने मार दिया, वो हमारे पास आए और कम से कम कीमतों में चीज़ें खरीद कर लेके जाएं। रमजानुल मुबारक की बरकतें समेटने के बाद ईद की खुशियां बच्चों की खुशियों में हैं, मगर मौजूदा महंगाई ने ईद की खरीदारी को इंतहाई मुश्किल में कर दिया है। जबकि खवातीन की कोशिश यही है कि अपनी खुशियों को कुर्बान करके बच्चों की खुशियों को हासिल किया जाए। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। यौम शहादत हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का मगरबी सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। उन्होंने कहा, फितनाल ख्वारिज फितनाल हिंदुस्तान पर कड़ी नज़र रखें, बैन सूबाई सरहदी चौकियों पर तैनात इंतहाई अलर्ट रहे। लाहौर समेत सूबा भर में 30,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार अज़ादारी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में अज़ादारी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी पर 8,000 से ज़्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। 217 अज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 20,994 मजालिस पर 10,000 से ज़्यादा अफसरान और अहलकार तैनात। मजालिस और अज़ादारी जुलूसों के शरका की चेकिंग के लिए 2029 मेटल डिटेक्टर, 297 वॉक थ्रू ग्रेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि आरपीओज, सीपीओज और डीपीओज अज़ादारी जुलूसों मजालिस के सिक्योरिटी इंतजाम की खुद चेकिंग करेंगे। महकमा वासा लाहौर की सब डिवीजन डोलनवाल में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार। एमडी वासा गुफरान अहमद ने इंक्वायरी नहीं लगाई। वासा का पीआरओ शोबा मुकम्मल नाकाम। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, महकमा वासा लाहौर की सब डिवीज़न डोलनवाल में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने इंक्वायरी अभी तक नहीं लगाई। वासा का पीआरओ शोबा भी इस मसले में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। वासा के तर्जुमान अबूजर सईद से भी हमारा राब्ता हुआ और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। इस हवाले से जब हमने सेक्रेटरी हाउसिंग के पीआरओ तला महमूद को इस हवाले से ख़बर भिजवा दी है और हमें यकीन दहानी भी करवाई गई है कि चंद दिनों के अंदर इस मसले की ना सिर्फ इंक्वायरी होगी बल्कि इसके ऊपर मुकम्मल एक्शन होगा और इस करप्शन में जो मुलव्वस हैं, ख़ास तौर पर गुफरान अहमद जो डायरेक्टर हैं, बालटाउन के एसडीओ जाहिद हुसैन हैं, जो सब इंजीनियर हैं राना आतफ, आरएफआई हैं तारिक और सुहेल सोत्रा, इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और जिसमें जो भी मुलव्वस पाया गया और जट नामी कार ख़ास जो कि सीवर मानों के लिए इस टाइम फ़राउन बना हुआ है, उन सब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी ना सिर्फ इंक्वायरी लगाई जाएगी बल्कि उसमें जो भी कसूरवार साबित हुआ उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीरा जाओजगन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का अहम इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास का बुनियादी मकसद ज़िला में मुख्तलिफ कमर्शल और रिहायशी तामीराती मनसूबों, हाउसिंग स्कीमों और नक्शों की फ़नी जाँच पड़ताल के बाद इनकी बाकायदा मंजूरी देना है। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीरा जाओजगन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सनिया साफ़ी और दीगर मेम्बरान के हमरा मुख्तलिफ इमारतों के डिज़ाइन और नक्शों का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने सख्त हिदायत जारी की कि किसी भी तामीराती मनसूबे की मंजूरी देते वक्त पार्किंग की जगह, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी ज़वाबित को हर सूरत मद्दे नज़र रखा जाएगा। डेरा गाजी खान सर्कल कोर्ट चट्ठा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। पुलिस की गिरफ्त कमज़ोर। इंसाफ के हुसूल के लिए थाना चोटी आए शहरी पर पुलिस के सामने शदीद तशद्दुद किया गया। थाना गेट पर दूसरी बार लड़ाई का मामला पेश आने पर अवामी समाजी हलकों ने आरपीओ डेरा गाजी खास से पुलिस की गिरफ्त को मजबूत करने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में खलका पीपी 266 में एमपीए मुमताज़ अली की तरफ से तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हाकिम महर से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी हाकिम, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के हलका पीपी 266 की बस्ती गुलशेर महर मौजा गोड़ तरगाई यूनियन काउंसिल बिंदौर अब्बासिया में, जो कि अरसा दराज से बुनियादी मसाइल का शिकार थी। यहाँ बुनियादी मसाइल का फुकदान था।
अब जो है MPA मुमताज़ खान चांग ने इन एलियान इलाका की सुनी है। वहाँ रोड बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, तरक्याती काम का आगाज़ हो चुका है। तो हम पूछते हैं वहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से उनका क्या कहना है इसके बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हल्का 266, हमारे MPA सरदार मुमताज़ अली चांग साहब, पहले भी हमारे MPA वगैरह होते थे, लेकिन हमारा कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती की रोड बन रही है। आगे भी हमारी ये बस्ती है जिसमें रहती हैं डूजा मौलवियाँ हैं, बस्ती मोहम्मद नवाज महार है, बस्ती लखमीर मार है, खुदादाद मार है, 63 चक है, और संजर मार, मीठा मार और बस्तियां भी हैं। हमें आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा MPA हमें वहां तक सड़क बनवा कर देगा। इंशाल्लाह ताला हमारा रास्ते का जो मसला है हमारा MPA सरदार मुमताज़ अली चांग साहब ही हल करेगा। मेहरबानी। जी आप क्या कहेंगे? ठीक है, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मुमताज़ साहब ने बहुत काम अच्छा किया है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करेगा, उसका शुक्रगुजार हूँ, दिल की तहराई के शुक्रगुजार हूँ। जी एक और मोअज़्ज़िज़ीन से पूछते हैं उनका इस रोड बनने में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे लिए तो बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत थी। ये रोड रास्ते ये तो हमें 50 साल पहले मिलने चाहिए थे, लेकिन हमारे इलाके में पहले RS मुनीर साहब ने हमें कुछ रोड और बिजली दी थी, उसके बाद किसी ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। हमारा इलाका काफ़ी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई स्कूल है, ना कोई बुनियादी सहूलतें हैं। हम मुमताज़ अली चांग साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, उसके मशकूर हैं कि उसने हमें ये हमारी बात सुनी गया और हमें ये रोड दिया है। लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आने जाने का बहुत मसला है। मेहरबान। जी आपने सुना मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से कि यहाँ इलाके में रोड रस्तों का फुकदान था, तो मुमताज़ अली चांग ने इस इलाके में एक नई उम्मीद ज़ाहिर की है एलियान इलाका के लिए कि यहाँ तरक्याती काम होंगे और इलाके में भी होंगे। लोग बहुत खुश हैं। जी टोंक पुलिस का क्रैकडाउन, 6 कुमारबाज गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान को ताश पर सट्टेबाजी करते हुए मौका से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से 50,000 से जायद नकद रकम, मोबाइल, ताश के पत्ते और रिकॉर्ड डायरी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सदर राना ताहिर हुसैन ने SHO चौंग और पुलिस टीम को शाबाश दी। SP सदर राना हुसैन ताहिर का इस हवाले से कहना है कि कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मौका पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के सूबा भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। यौम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जुलूसों और मजालिस की जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन्स के जरिए मुसलसल सर्वेलेंस जारी। जुलूस और मजालिस की सर्वेलेंस के लिए सेफ सिटी हेडक्वार्टर में वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। सूबा भर में कायम स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स भी कैमरों और ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। हसास मकामात पर इजाफी कैमरों और ड्रोन सर्विलेंस के जरिए सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाया गया है। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान और टेक्निकल टीमें 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। रेडियो सेफ सिटी FM 88.6 के जरिए शहरियों को जुलूसों के रूट्स और ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर दें। गुलशन रावी पुलिस की कार्रवाइयां, मंशियात और शराब फरोश, 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को खुफिया इत्तला पर गुलशन रावी के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से 1 किलो से ज़ायद चर्स और जहरीली देसी शराब बरामद की गई। मुलजिम मुतअद्दिद मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन ने SHO गुलशन रावी, असद बशीर और पुलिस टीम को शाबाश दी। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का इस हवाले से कहना है कि मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना ने यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस रूट के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। मजीद बताएंगे सैयद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मरियम खान व CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना ने लाहौर के मरकजी जुलूस रूट का इंतजामात के हवाले से जायज़ा लिया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड एजाज, DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान भी हमरा थे।
इंतज़ामिया का अकबरी ता मुबारक हवेली बीबी पाक दामन का दौरा, मुंतज़मीन से भी मुलाकातें की। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम मरकज़ी जुलूस के लिए इंतज़ामिया व पुलिस के इंतज़ामात मुकम्मल हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतज़ामिया का रूट का पैदल दौरा प्लान के मुताबिक इंतज़ामात को चेक कर लिया गया है। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस के म्यूनसिपल व सिक्योरिटी इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया गया है। मुबारक हवेली से बरामद यौम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से जो जुलूस वो गामे शाह करबला जाके इख्तिताम पजीर होगा। कमिश्नर लाहौर व CCPO लाहौर के मज़ार अक़दस बीबी पाक दामन पर हाज़री भी हुई। लाहौर इंतज़ामिया के मुंतज़मीन जुलूस से ख़ुसूसी मुलाकात, मुंतज़मीन का इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस इंतज़ामिया और मुतल्लिका अदारे जुलूस के हमरा मौजूद होंगे। कमिश्नर लाहौर को मरकज़ी जुलूस रूट पर इंतज़ामात की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी गई। मरकज़ी कंट्रोल रूम व मॉनिटरिंग सेंटर कायम, लाइव निगरानी का निज़ाम फ़ाल होगा। जी। यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का ट्रैफिक प्लान जारी। जरी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद होकर करबला गामे शाह इख्तिताम पजीर होगा। CTO डॉक्टर अतहर वहीद ने एम्बुलेंस और एमरजेंसी गाड़ियों के लिए फौरी रास्ता क्लियर रखने की हिदायत की। मरकजी जुलूस के शुरका की गाड़ियों के 7 पार्किंग मकामात मुख्तस किए गए। एक मोरिया से मस्ती घाटी शरावाला गेट सिंगल लाइन पार्किंग के लिए मुख्तस। हैदर साई और ग्रेटर इकबाल पार्क पार्किंग, स्ली मॉडल हाई स्कूल और चैम्बर लेन पार्किंग के लिए मुख्तस। SSP ट्रैफिक सिटी जोन मकसूद अहमद ट्रैफिक इंतजामात की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। 2 SPs, 5 DSPs, 52 इंस्पेक्टर्स और 674 वार्डन्स के साथ साथ लेडी वार्डन्स और ट्रैफिक असिस्टेंट भी तैनात किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।